Okay, so number one topic is microcanonical ensemble. So what is microcanonical ensemble and what is ensemble? First, we have to understand that. So ensemble in statistical mechanics actually have a very different definition. Okay, very kind of different definition. The definition comes from phase trajectories and so on so on. But we don't have to go in that direction. You can understand ensemble is a way of treating a statistical mechanical problem. Ensemble is a way of treating statistical mechanical problem. That's it. What is its precise definition, how it comes, what is the meaning? We don't have to go in that direction. Okay? That is for understanding part. Now coming to microcanonical. There are three kind of ensembles. One is microcanonical. Second is microcanonical. And third is grand canonical. Or you can say there are three kind of treatments you can do to a statistical mechanic problem. There are three ways in which you can solve a statistical mechanical problem. Just like spherical polar coordinates, cylindrical polar coordinates, Cartesian coordinates. Depending upon what is the symmetry of your problem, you can choose any one and solve your problem. Okay, that is from the point of view of the problems. Okay, now in which situations we use microcanonical ensemble? Okay, the systems having constant NVP. Okay, oh sorry, NV and E. Okay, what is N? N is a number of particles. Let's say in your system the number of particles is fixed. So you have some container in which particles are not entering or not leaving. So then in that case N is constant. Second is V. What is V? V is volume. Volume is fixed. Okay. And third is the total energy of the system. If your system has these three properties, then it is recommended that you solve the problem with the microcanonical ensemble. Okay. From here problem, I am not referring to the problem of the jest. I am referring to the problem of the statistical mechanics, the problem of physical problems which a scientist need to solve. Okay, then it is recommended that you solve microcanonical with the microcanonical ensemble. But no one is stopping you. If you will apply macrocanonical and you can do all the mathematics, because mathematics will become hard. But if you can do the mathematics, the same answer will come from macrocanonical as well. The same answer will come from grand canonical as well. There is no fundamental way the physics is saying that you apply that. But it is just for our convenience that when the system has constant n, constant v and constant e, microcanonical ensemble is the best. Now, what is the one quantity which is most important in microcanonical ensemble? That is entropy. Whenever the problem has word entropy in it, it means we are dealing with the microcanonical ensemble, because entropy is the most fundamental quantity in the microcanonical ensemble which we find. How we find the entropy? We all know the formula S equals to K L N sigma. What is this? This is Boltzmann law. Okay, so this is a Boltzmann constant, and sigma is the number of accessible microstates, number of
accessible microstates. Okay, so if let's say in the last problem, in the last yesterday's problem, I told you how to find the number of microstates for the different problems. In how many ways you can arrange. That is equals to the number of microstates. So we find the number of microstates yesterday, number of microstates. So once we know the number of microstates, number of accessible microstates, let's say it is 4, 5, 6, 7, or it depends upon temperature. Okay, sigma can depend upon temperature. Okay, sigma can depend upon temperature. So it can be a function of T. It means at let's say at 20 degrees centigrade, uh, your sigma is something else. You're at 40 degree. Does it make sense physically? No. Let me make that sense physically. I told you yesterday, let's say it is a potential well, and there are energy levels, many energy levels, and there is only two bosons, let's say. At T equals to 0 Kelvin, all the bosons, both the bosons will be in the ground state. We all know that. So number of microstates will be something, let's say 1. Now, at some higher temperature, some bosons, a 1 or 2, both bosons will go to the higher state. Okay, it can go to the first state, it can go to the second state, it can go to the further third state, fourth state, so on. So number of microstates are changing. It means the total number of microstates can be a function of temperature. It can also be a function of pressure and other physical quantities. Okay, other physical quantities, it can be a function of those quantities as well. So now we understand that from the information of total number of microstates, we can find this entropy, and this is a very important relation. Okay, this helps us to identify the absolute entropy at any point. In second law of thermodynamics, we find change in entropy using this formula. We don't know what is an absolute entropy, but using this formula, we can find the absolute entropy at this point. We don't find the change in entropy. Okay, that's it. So why I said that entropy is a most important relation, because we can find everything else from the entropy. How? Let's do it. Thermodynamics. How do we find thermodynamics? Solving a system means finding all the thermodynamical quantities. Solving problem means finding all thermodynamic physical quantities. What are these physical quantities? Pressure, temperature, volume, chemical potential. Okay, all the thermodynamic potential like free energy. Okay, Helmholtz energy, Gibbs free energy, etc. All these physical quantities are called thermodynamical quantities. So what microcanonical assemble says, find the entropy and then you can find all these physical quantities. How you can find all these physical quantities? Let me tell you. So we know first law of thermodynamics. What does it say? dq, the heat you provide, is equals to the change in internal energy plus some work done. And we also know that change in internal energy is, what is this? TDS. Okay, it is TDS. It is what? Second law of thermodynamics. Okay, TDS. So also we know what is DU. It is PdV. Oh, sorry.
dW, it is PdV. Okay, we all know that. So let's put it here. TdS equals to du plus PdV. You all agree that? Yes, sir. Yes, by There is one Yes, more. yes. Yes. Okay. minus mu dn Yes, there is due to that. total Okay. potential. So you okay, good. मतलब मैं इसको बाद में लाना चाह रहा था, ठीक है. So minus nu dn is also there. We all know that. Did all of you know that in first law of thermodynamics there is also one more term which is only used in Yes, statistical mechanics. This is भैया, called yes. सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन मतलब सर विजिबल नहीं हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है स्क्रीन जो आपने शेयर की हुई है. किसको किसको स्क्रीन नहीं आ रही, जल्दी से हाथ खड़ा करो. मृदुल तुम्हें स्क्रीन नहीं आ रही? और सबको आ रही है? जिसको जिसको आ रही है वो हाँ कर दो. आ रही है भैया. हाँ भाई, आ रही है भैया. आ रही है भैया. रितिका, अंजलि, इन सबको नहीं आनी आ रही है. अब नहीं आ रही कि आ रही है? हैंड कर रहे हो? अच्छा, आ रही है. आ रही है भैया. आ रही है ना यार, आ रही है कि ठीक है. किसी को नहीं आ रही तो थोड़ा इंटरनेट चेक करो अपना, और कुछ नहीं है. सर चलो. स्क्रीन शेयर ऑफ और ऑन करके ठीक हो जाए सकता है सर. हाँ, वो करो, जो भी सोल्यूशन करना है तुम्हें करना पड़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू माइनस न्यू डी एन. चलो ये जल्दी से बताओ न्यू क्या है. केमिकल पोटेंशियल. हाँ वो ठीक है, ये मुझे बताओ इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. The value is equal to that of Fermi energy. Okay, value is equal to the Fermi energy. Now you, in order to answer one, to define one physical quantity, you give me another physical quantity. You have to explain it. Okay, you have to give me the explanation. What is Fermi energy now? Then will have the second question. So what is the simpler definition of nu? So whenever someone asks you in the class and you don't know the answer, but anyway you want to give the answer, how you will give the answer? By looking at the dimensions. Okay. What is the dimension on the right hand side, left hand side? None. Energy. Okay. Energy, yes. Okay. So what is this? N. What is this? Number. What is this? Number. Okay. So what will be the dimension of energy? What will the dimension of chemical potential? Energy per Energy. particle. Energy per particle. Yes, ma'am. Do you all now? Can someone guess that what will be the meaning of this chemical potential? Sir, energy lost. No. Energy It is change due to particle transfer. What is the second hint in this formula? Second hint in this formula is minus n. That whatever energy you are providing is getting spent in changing the internal energy, is getting spent in doing the work done. But there is an additional energy. It is not getting spent. It is increasing your. It means it is helping your dq. Am I right? Yes, yeah. Yes. Yes or no? Yes, yes, yes. Bhaiya. Yes, ma'am. So this is actually, chemical potential has a many meanings. Okay, it is not a single quantity. So one of the simplest meaning I can tell you is it describes how much work more you need to
add a particle in the already existing state. What does it mean? Let's say you have 3 particles in 3 state and you want to add one more particle, okay, in this state. So what will be the energy needed per particle? Means you want to add 1 particle, 2 particle, 3 particles. So if you want to add 8 more particles in this, so energy per particle will give you chemical potential. You all understand? समझ गए केमिकल पोटेंशियल क्या है? Now that person said Fermi energy. Fermi energy is the energy of a system at T equals to 0 Kelvin, or you can say it is the energy of the highest occupied state. Now if you want to add one more, then what will be that? It will be equals to the Fermi energy, है ना? Because if the highest most energy is Fermi energy, then what is the energy needed to add one more particle? Because you will add to the highest energy, na? Highest energy. So that will be equals to the Fermi energy. That is why that person said Fermi energy. Okay, तो केमिकल पोटेंशियल का मतलब समझ आ गया क्या है? इट इज एनर्जी पर पार्टिकल. समझ गए? नहीं समझे? Sir, once more. So chemical potential is, let's say your system already have a 3 particles in 3 energy levels. Now if it is fermion and you want to add it, you cannot add it in 3rd particle, you have to add in 4. So energy needed will be the difference in 3rd energy level and 4th energy level, or you can say the energy needed will be equals to the energy of the 4th level. If you want to put any particle in the 4th energy level, what is the energy required? It is the energy required, it is the energy of the 4th level. Okay, but let's say it is a classical particle, then you can add it in 1st level, you can add it in 2nd level, you can add it in 3rd level, whatever is your choice. So what is the minimum energy? What is the minimum energy you required to put a classical particle into this box? It is equals to the energy of the 1st level. What is the energy required to put another particle which is a boson? It is also equals to the energy of the 1st level. ठीक है? तो हर एक सिचुएशन में अलग एनर्जी चाहिए एक और पार्टिकल को ऐड करने के लिए. सो केमिकल पोटेंशियल यही रिप्रेजेंट करता है. केमिकल पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स कितनी एनर्जी चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक और पार्टिकल को ऐड करने के लिए. ठीक है? यस भैया. हेलो. अब क्लियर है? जो हैंड रेस कर रहे हैं वो बोल सकते हैं, मतलब ऐसे ही बोल दो जो भी बोलना चाहते हो. ओके भैया. भैया एक डाउट है. आप 2 सिस्टम लीजिए, एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है, एक हाइड्रोजन एटम है. तो 1 डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी पॉजिटिव है एंड हाइड्रोजन एटम का एनर्जी नेगेटिव है. तो इसके लिए केमिकल एनर्जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं. मतलब हाइड्रोजन के लिए तो बिल्कुल हो सकती है. कुछ के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है? कुछ में क्या होता है, एनर्जी देनी नहीं पड़ती, सिस्टम खुद खींच रहा है पार्टिकल को. समझ रहे? लेट्स से हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन रखा. सो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट अ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस? ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टॉप कर देना, न्यूक्लियर उसको खुद ही खींच लेगा. ठीक है? सो नो एनर्जी रिक्वायर्ड. इन फैक्ट दैट केमिकल पोटेंशियल इन दैट केस इज नेगेटिव. ठीक है? अगर तुम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को और पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बोल, और एक तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में केमिकल पोटेंशियल का नेगेटिव होना इज नेसेसरी. ठीक है? बोसॉन के लिए मतलब फोटोन के लिए 0 होता है एंड बोसॉन के लिए नेगेटिव होता है वो पार्ट. हाँ, वो तो अब जब जाके समझोगे ना, नहीं अभी उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता मौसम. अगर तुम अब जाके रीड करोगे ना इसको, इस डेफिनेशन से, एनर्जी पर पार्टिकल की डेफिनेशन से को अपने दिमाग में रख के, तो तुम्हें वो समझ आ जाएगा कि उसकी 0 क्यों है, किसी की नेगेटिव क्यों है और किसी की पॉजिटिव क्यों. ठीक है? ओके भाई, ठीक है. और किसी को कोई डाउट है? बढ़े आगे. हेलो. हाँ जल्दी बताओ. वो फर्स्ट लॉ में से सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? फर्स्ट लॉ में इसे सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि एक तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी को डिफाइन कर रहा है. मींस द सिस्टम कि
अपने पास में क्या एनर्जी ऑलरेडी है, ठीक है, मान लो अगर 3 पार्टिकल्स हैं तो उन 3 पार्टिकल्स को उस सिस्टम में रखने के लिए वो ऐसे इंटरनल एनर्जी भी एक्सप्लेन होती है उससे कि इंटरनल एनर्जी ये थी, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी गई। ओके समझो, फिर डिटेल में समझो। देखो मान लो तुमने इंटरनल एनर्जी चेंज की, इट मीन्स दैट let's say initially you had 2 particles in the ground state. Changing the internal energy means you put this particle into this. So when you do this, and then the chemical potential also changes na. Let's say you have the 2 situations. One situation is you have one classical particle here, and one situation is you have one classical particle here. So you gave this energy to this system and this particle went up. That means it becomes this situation. Now the energy needed to add another particle in this situation and in this situation is different. So when you change the internal energy of the system, it means the chemical potential of the system also changes. Okay? And that factor is accommodated here. You understand? हाँ समझे बात को? एग्जैक्टली माइनस, इसको एग्जैक्टली माइनस मत समझो क्योंकि केमिकल पोटेंशियल खुद भी माइनस हो सकता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली पॉजिटिव भी जा सकता है, ठीक है, कुछ केसेस में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, वो डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम, पर ये इस फैक्टर को अकोमोडेट करता है, ठीक है। चलो चलो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। So once we know this, ठीक है, once we got this formula, our work is done. TdS PdV minus nu dm. This is a major formula we need in the microcanonical assembly. From why? Because from here we can find everything. How? So if I do the derivative with respect to energy, curly S by curly U. Okay, curly S by curly, sorry, you do just a second. Yes, curly S by curly U, keeping volume and number of particles fixed, because in microcanonical assemble volume and number of particles are fixed. Now I am just changing energy, only changing energy. So curly S by curly U will be equals to 1. Derivating this will be 1. Now if volume is constant, this will be 0. If N is constant, this will be 0. So what is my temperature? What is my temperature? 1 by curly S by curly U. ओके, पहले तुमने एंट्रोपी निकाला, फिर तुमने उस एंट्रोपी का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो तुम्हें क्या मिल गया? टेम्परेचर। समझ गए बात को? पहली फिजिकल क्वांटिटी निकल गई, अब दूसरी निकालते हैं। नाउ डू द सेम डेरिवेटिव विद वॉल्यूम। सो T इज कांस्टेंट, सो कर्ली S बाय कर्ली V, बाकी सब कांस्टेंट कर दो, U एंड N कांस्टेंट कर दो। अब क्या करेंगे? पहली ये टर्म 0 हो गई, ये P हो गया और ये भी 0 हो गया, तो P क्या आ गया? P इज T टाइम्स कर्ली S बाय कर्ली V, U इंटू N। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? केमिकल पोटेंशियल। तो उसके लिए मुझे बताओ किसके साथ डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहां से देख के। dn ओके, सो कर्ली S बाय कर्ली N, क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? UV टेम्परेचर। ओके, तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज मिल गई। किसी को यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सर? तुम्हें एंट्रोपी चाहिए बस, और फिर अगर तुम्हें मैं बोलूँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकालो, तुम्हें एग्जाम में दिया जाएगा
कि पहले तुम्हें बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ वेज, वहां से तुम्हें एंट्रोपी निकालनी है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हमने निकाल ली। इसके अलावा और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, वो भी पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कौन कौन से हैं बताओ मुझे। सबसे पहला कौन सा है? फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या उसकी डेफिनेशन ये होती है? नहीं पता तो याद कर लो। फ्री एनर्जी इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। ठीक है, समझ गए? हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे यू, तो यहाँ पे यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर हमने निकाल लिया, टेम्परेचर ये है। ठीक है, एस हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली फाइंड कर लिया था। ठीक है जी, हमने एग्जिस्टिंगली फाइंड कर लिया था। और कौन सी क्वांटिटी होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। वो क्या होता है? यू माइनस टी एस प्लस पी वी। ठीक है, यू माइनस टी एस प्लस पी वी। ओके, तो यू इज हेयर। हाँ, अब ऐसा भी कोई पूछ सकता है कि हम यू क्यों नहीं निकाला, हमने यू क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल असेंबल में कौन सी 3 चीजें फिक्स हैं? यू, एन एंड वी। तो ये तीनों तुम्हारे मतलब हैंडल्ड वेरिएबल है, मतलब तुम्हारे हाथ में वेरिएबल है, मतलब कि तुम्हारी हर एक फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों में डिपेंड। अब मैं इसको थोड़ा सा ना तुम्हें उस भाषा में समझा देता हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? आर, थीटा और फाई तुम्हारे हाथ में होते हैं। ठीक है, आर, थीटा और फाई तुम्हारे हाथ में होते हैं, और तुम क्या करते हो? एक्स को निकालते हो आर थीटा फाई में, वाई को निकालते हो आर थीटा फाई में, जेड को निकालते हो आर थीटा फाई में, ऐसा ही करते हो। तो माइक्रो कैनोनिकल असेंबल में तुम्हारे हाथ में क्या है? यू एन वी। समझ गए? समझ गए? इस वजह से तुम बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज को यू एन वी की टर्म्स में लिख रहे हो। समझ गए बात को? और ये सब काम करने के लिए तुम्हारा मदद कौन कर रहा है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मदद कर रही है? एंट्रोपी। एंट्रोपी। ठीक है, क्यों कर रही है वो मदद? एंट्रोपी क्यों मदद कर पा रही है? यहाँ पे तुम्हें फंडामेंटली मैं खींच रहा हूं, क्योंकि एंट्रोपी को हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से फाइंड करने की हिम्मत रखते हैं, हमें वो उसका फॉर्मूला पता है। समझ गए? S इक्वल्स टू के एल एन सिग्मा। उस फॉर्मूला की वजह से हमें एंट्रोपी हम यूनिवर्सली फाइंड कर सकते हैं, हमें यू एन वी या किसी भी टी एच यू के चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं। इस वजह से एंट्रोपी हमें मदद कर पा रही है इन दोनों को जोड़ने के लिए। हाँ, जिस क्वेश्चन है ऐसे ही पूछ लो। भैया, हाँ, यस्टरडे क्लास में जो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट किया था वो डीजी नंबर था, तो नंबर से कैसे उसको डेरिवेटिव करके, मतलब एस इज इक्वल टू के एल एन सिग्मा, तो सिग्मा इज नंबर, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे? sigma is a number, okay, the number, but this number can depend on t and other factors. You understand? ओके भैया, तो प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग इस तरीके से तो कोई डीएम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर? No, you are saying that the entropy is k ln sigma, and sigma is a number, so you are saying this entire thing is a constant, so whenever we will take derivative it will become 0. That is what you are saying? यस भैया। So I am saying that sigma is a number, but this number depends upon temperature and other physical quantities. That is, it also depends on v, it also depends on n. That is why we are taking the derivative. Understand? Okay भैया। I also explained in the starting that why sigma isn't depending upon the different physical quantities. Huh? You understand, na? Okay, number of ways will definitely change if you will increase or decrease the temperature. समझ गए? यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? हाँ भैया। अब सब इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करो, इसको
कर लिया? चलो अब क्वेश्चंस आप पे आ जाए, माइक्रो कैनोनिकल के क्वेश्चंस कर लें यस यस भैया। कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है क्वेश्चंस को करने के लिए। Okay, so read the first question. The free energy density of a gas. Can anyone tell what is free energy density? F/V. So it will F. be F by V. All of you agree? जल्दी जल्दी Yes. बताओ। हाँ ठीक है। Now the free energy density of a gas at a given temperature is this. They have given. Rho क्या है? Rho represent the density of a gas. Okay. So they are saying what is the pressure of the system. तो अब आपको बस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ खेलना है, बस और कुछ नहीं करना। मैथमेटिक्स की गेम है, कंसेप्ट कुछ भी यूज नहीं होगा इसमें। लेट्स जस्ट प्ले दैट गेम। सो हियर यू कैन सी द एफ इज सी रो, दिस इज अ स्मॉल एफ, सो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू द chemical potential, free energy per unit volume, it is given. So what is free energy? Free energy is C rho V ln rho by rho naught. ये समझ आ गया किसी को यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या है यहाँ तक? समझ गए? No. नहीं Yes. हाँ, जो नो बोल रहा है बताओ, नहीं समझे हो? फ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है, वहां से फ्री एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या किया है? कर दिया वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या बोला था, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करो। फ्री एनर्जी इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। नाउ देयर इज अ टिप, whenever you want to play with the physical quantities, take their derivative. So I have taken the derivative, df equals to du. Now you have to apply the product rule. So keeping t constant, take the derivative of s, so it will be t ds. Now keep the s constant and take the derivative, so it will be t dt. Now we all know what is du. Du is t ds minus p dv, यही है ना? t ds equals to p dv plus du. तो du क्या होगा? t ds minus p dv, वही मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस टी डी एस माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो मेरे पास बचा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ओके, यहाँ पे न्यू डी एन लिखना था, तो यहाँ पे माइनस न्यू डी एन होता है, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। दैट इज वाई हेयर प्लस न्यू डी एन विल ऑल्सो कम। सो योर फॉर्मूला फॉर डी एफ इज दिस। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको प्रेशर फाइंड करना है। सो कैन यू फाइंड द प्रेशर by taking the derivative of df with dv? आपने जैसे ही उस डेरिवेटिव को लिया, आपके पास एक आंसर आएगा, एक लंबा सा डेरिवेटिव करके, वो है सी रो। क्या कोई मेथड को समझ गए हो? करना क्या है, थोड़ा सा मतलब अलग मेथड है, इसमें समझने वाला कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है। yes, प्रोसीजर को समझो, क्या करना होता है। यस भैया। नया है, आई एग्री, मैं मानता हूँ नई चीज है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो फिजिकल क्वांटिटी दी है, मान लो तुम्हें एफ दिया है और प्रेशर पूछ लिया गया है तुमसे, तो क्या करना है, एफ देखो है होता क्या है, एफ होता है ये, फिर उसका डेरिवेटिव लो, और तुम्हें हमेशा एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी माइक्रो कैनोनिकल असेंबल में। हर एक असेंबल में एक ऐसी इक्वेशन तुम्हारे पास आएगी, पीछे भी आई थी, वहां से हमने इंट्रोपी के रिलेशंस निकाले थे कि हम प्रेशर वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा को इंट्रोपी अगर पता है तो कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हम ये रिलेशंस निकाल रहे हैं कि अगर एफ गिवन है तो फिर हम प्रेशर इंट्रोपी ये वगैरह ये सब चीजें कैसे निकालें।
तो फिर हमें एक ऐसी ही इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनेगी? वो डेरिवेटिव लेकर बनेगी। जैसे ही तुमने इसका डेरिवेटिव लिया, एक ऐसी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर अब मैं बोलूं कि मुझे इंट्रोपी चाहिए, तो क्या क्या फॉर्मूला होगा उसका, बताओ। df by del F by del S माइनस डेल डेल टी del माइनस T डेल्टा डेल टी आएगा, डेल टी नीचे आ जाएगा। कांस्टेंट क्या क्या रहेगा? वी एंड एन। V N N रहेगा भी। समझ गए? सब समझ भैया गए इस बात को? हाँ जी भी। हाँ भैया ठीक। Yes, हम भैया। df by dv में हम t और n कॉन्स्टेंट लिए है भैया, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना भैया, हम कॉन्स्टेंट को कैसे ले सकते हैं खुद? देखो देखो, कांस्टेंट क्यों लिया है टी एन एन? क्योंकि हमें ये दोनों टर्म जीरो करनी है ना। प्रेशर कौन सी टर्म में है? सिर्फ इस टर्म में है, हाँ भैया। मानते हो? तो हमें प्रेशर चाहिए, तो क्या करोगे? तुम्हें चाहिए कि ये खत्म हो जाए, ये सारी टर्म खत्म हो जाए, और तुम्हारा प्रेशर फिर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा करली एफ बाय करली वी, है ना? अगर तुम्हें प्रेशर चाहिए सिर्फ, तो करली एफ बाय करली वी बन जाए, बस तुम ये चाहते हो, और बाकी चीज जीरो हो जाए। तो बाकी चीज को जीरो करने के लिए क्या कांस्टेंट होना चाहिए? t and n। तो वही क्या है। हाँ भैया ठीक है। ठीक है। अब इस जेस्ट में क्या किया गया है, आपके साथ थोड़ी सी खेली गई है ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें दोनों ऑप्शन देके तुमसे गलत ऑप्शन टिक करवाया जाएगा। अब दिखाता हूं कैसे। अब उसने बोला कि f का डेरिवेटिव लेना है तुमने v का। ओके, v के साथ डेरिवेटिव लेना है, और तुम्हारे पास f ये है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बताओ। जीरो ln रो बाई रो जीरो तुम ऐसा आना बोलोगे कि चाहिए। तुम बोलोगे कि v है ये, तो v हट जाएगा, हाँ तो c रो ln रो बाय रो नॉट आंसर आ गया। हाँ अब तुम ऊपर जाओगे, और ऊपर ऑप्शन में ये आंसर दिया भी है। तुम खुश हो सर गए, बट टिक मार। हाँ अंदर लेकिन तो रो है ना सर, हाँ अंदर है रो। M by रो V इज रो इज डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन on वॉल्यूम। volume। यस भैया, समझ तो गए? यहाँ से फिर होगा वो। हाँ भैया। समझ गए बात को? हाँ हाँ भैया। तुम्हारे साथ गेम हो गई है। यस भैया। ये गेम तुम पकड़ सकते हो अगर तुम सावधान रहो तो। बताओ कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, माइनस कर लिया बाय कर ली वी। तो अगर उस फॉर्मूले में मैं लगाऊं, तो आंसर मेरा बनेगा सी डी नॉट एल एन। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में वो पॉजिटिव दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में ये पॉजिटिव है ना, यस ये भैया। देखो यस यस करेक्ट। नेगेटिव तो यस नहीं है। भैया। तो तुम इस गेम को पकड़ सकते हो एक्चुअल में, कि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको इजीली सॉल्व करने का क्या तरीका है? तुम प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहले क्या करो, सी तो चलो कॉमन है, सी को तो बाहर रहने दो। तो पहले क्या करो, रो मतलब रो एल एन वी को एक चीज मान लो, और वी को एक चीज मान लो। ठीक है, सी तो यहाँ पे आएगा। तो पहले तुमने रो एल एन वी ये रखा, और इसको मतलब वी के साथ डेरिवेटिव कर दिया, और फिर क्या किया तुमने, दूसरी चीज को डेरिवेटिव कर दिया। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी रो। मतलब ये डेरिवेटिव तो नहीं करके मैं दिखाऊंगा तुम्हें। समझ गए ना करना क्या है अब? हाँ भैया, हाँ भैया। यस भैया। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। लेकिन ये तुम्हारा एक टास्क है कि तुम इसको डेरिवेटिव करो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक इजी ट्रिक भी लगाई हुई है, वो तुम देख लेना। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे मेनली, यहाँ पे तुम ये डेरिवेटिव वगैरह कर लेना। ठीक है, चलो। तो इसका सही आंसर है सी रो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2n नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स। ठीक है, each fixed in a position and carrying a magnetic moment nu. The system is in uniform magnetic field B. The number of spin up particles for each entropy will be maximum is. तो तुम्हारे पास 2n स्पिन्स दे रखी हैं, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ऐसे एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। अब मान लो मैं इसके
अंदर एक स्पिन रखता हूं, तो क्या स्पिन ऐसे पड़ी रह सकती है सेकंड ऐसे? क्या स्पिन ऐसे रह सकती है? बताओ, क्या स्पिन ऐसे रह सकती है? नहीं भाई सारे अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्यों ऑपोजिट नहीं हो सकते? हाँ भैया बोलो। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ। हाँ हो सकते हैं। डॉट जीरो होना चाहिए तो उसमें पढ़ा है ना तुमने, जब भी स्पिन रखोगे, ठीक है, जब भी तुम स्पिन पार्टिकल से रखोगे, तुम्हारा हाइड्रोजन एटम क्या करता है? तुम्हारा हाइड्रोजन एटम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो अप होता है या तो डाउन होता है, क्योंकि या तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है या तो ऑपोजिट हो सकता है। ये तो सबको पता है ये बात। यस भैया। तो अब तुम 2n स्पिन्स तुम्हें रखनी है, या तो स्पिन, कोई स्पिन अप होगी, कोई डाउन होगी, कोई अप होगी, कोई डाउन होगी, ऐसे डाउन होंगी। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि ऐसी कितनी, मतलब कितनी स्पिन्स अप होनी चाहिए कि तुम्हारी इंट्रोपी मैक्सिमम हो, ये पूछ रहा है वो। समझे? अब तुमने इस क्वेश्चन में वर्ड रीड किया इंट्रोपी, तुमने वर्ड रीड किया मैग्नेटिक मूवमेंट, तुम्हें लगा यार ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, लगेगा ना ये देखकर? इंट्रोपी रीड करके तुम्हें लगता है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फिर तुम्हें लगता है जस्ट बहुत लेंथी आता है, क्योंकि तुम इसको थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व कर रहे हो, है ना। थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये है माइक्रो कैनोनिकल का क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब मुझे बताओ इंट्रोपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अरे बताओ। ओमेगा KLNW। के एल एल KLN के एल एन सिग्मा। सिग्मा क्या है? नंबर ऑफ वेज। क्या है? नंबर ऑफ। तो मान लो तुम्हारे पास स्पिन अप है n प्लस और स्पिन माइनस है n माइनस, मतलब कि इतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन अप में है और इतने स्पिन डाउन में, ठीक है, आउट ऑफ 2n। या अभी के लिए मान लेते हैं आउट ऑफ n, बाद में 2n कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि n ही हमारे पास सिर्फ n स्पिन है। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो n आएगा, मतलब टोटल n है ना, तो उनमें से n प्लस ऊपर n माइनस नीचे, तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? n। सही है, समझ गए यहाँ तक? जी भैया। अब मुझे बताओ ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? मान लो तुम्हारे पास टोटल n है, कल भी हमने ये बात की थी, तुम्हारे पास टोटल n है, उसमें से तुमने एक ग्रुप बनाना है n प्लस का, एक ग्रुप बनाना है n माइनस का। ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं? n c n प्लस। n प्लस। राइट। बिल्कुल। अब कोई कहेगा ना कि n c n माइनस, तो वो भी सेम ही आंसर देगा, वो सेम ही आएगा सर। ठीक है, सेम ही आंसर देगा, ठीक है। तुम इन दोनों में से कुछ भी निकाल लो। हमने एन सी एन प्लस क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये पूछा गया क्वेश्चन में कितने स्पिन अप होने चाहिए, तो हम स्पिन अप के पैरामीटर में बातें कर रहे हैं। तुम अगर एन माइनस भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो एन सी एन प्लस किया तो वो ये होता है एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस फिक्टोरियल एन माइनस एन प्लस फिक्टोरियल, ये हो गया। अब इंट्रोपी क्या होगी? के एल एन, सिग्मा की जगह मैंने ये रख दिया। अब जो एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए वो बताने जा रहा हूं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या था? स्टर्लिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। यस। ठीक है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है? जब भी तुमने एल एन एन फिक्टोरियल एन का फिक्टोरियल फाइंड करना है ना, तो क्या करो, उसको लिख दो एन एल एन एन माइनस एन। ये फॉर्मूला याद रख लो, जेस्ट में बहुत काम आएगा, गेट में बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूलास जो है अपनी डिक्शनरी में ऐड करने शुरू कर दो, ठीक है। जैसे तुमने अब तक किया है ना पोलराइजेशन एक्सेट्रा के फॉर्मूले, अब ये वाले ऐड करने शुरू करो, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो वही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने यहाँ पे एल एन का सिंपल रूल लगा दिया, के एल एन एन फिक्टोरियल एन डैश फिक्टोरियल माइनस के, ये कर दिया, और फिर मैंने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दी, ठीक है। तो मेरे पास एंट्रोपी आ गई, बस। ये अभी मैथमेटिक्स नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें, ये तुम आराम से कर सकते हो। अब मुझे बताओ एंट्रोपी मैक्सिमम करानी है तो क्या करूंगा? करली एस बाय करली एन प्लस का डेरिवेटिव 0 के इक्वल कर दूंगा,
कर दोगे? यही करते हो मैक्सिमम करवाने के लिए? यस भैया। हाँ मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी n के ऊपर डिपेंडेंट है और तुम्हें पूछा जा रहा है कि किस n वैल्यू के ऊपर वो मैक्सिमम होगी, तो तुम क्या करते हो? करली s बाय करली n इक्वल टू 0। अब मेरे जो जो मेरा जो s है वो n प्लस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैंने क्या किया? करली s बाय करली n प्लस को 0 करवा दिया। तुम जब 0 करवाओगे तो तुम्हारे पास एक फिजिकल मतलब आंसर आ जाएगा, वो आएगा n प्लस इक्वल टू n बाई 2। जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि n जो एक्चुअल में पार्टिकल 2 है ना, लेकिन मैंने कितने लिए थे? n। तो अब इसको दोबारा से सही करने का वक्त आ गया है, तो n प्लस एक्चुअल में क्या हो जाएगा? n, मतलब तुम्हारे टोटल पार्टिकल्स का आधा। समझ गए बात को? हाँ ठीक है भाई। भैया। सब समझ गए? यस भैया। यस सर। तो इस Yes, क्वेश्चन भैया। का ये क्वेश्चन का फिजिकल मतलब क्या था? ये क्वेश्चन का फिजिकल मतलब था कि तुम्हारे सिस्टम की इंट्रोपी तब मैक्सिमम होगी जब आधे मैग्नेटिक मोमेंट्स ऊपर होंगे और आधे नीचे होंगे। उस केस में तुम्हारी जो इंट्रोपी है वो मैक्सिमम हो। बताओ क्यों? इंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्टरबेंस। डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। डिस्टरबेंस। ठीक है, अभी तुमने सुना होगा, मतलब कोई भी इंसान इससे ऑफेंड मत हो, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं, सब मानते हैं, कहीं कहीं पे होती रहती हैं, हाँ। कुछ कुछ। मान लो एक दिन ऐसा आ जाए कि हिंदू और मुस्लिम इस देश में पॉपुलेशन में बराबर हो जाए, तो तब लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी कि कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। बढ़ जाएंगी, कम। क्योंकि कम। देखो ज्यादा जगह पे हो जाएगा ना लड़ाइयाँ। मतलब अगर मान लो कि 100% में से 2% लोग लड़ते हैं, ठीक है, तो जब दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। कोलाइडस ज्यादा होंगे। ज्यादा डेंसिटी हो जो जाएगा। ज्यादा, कोलाइडस ज्यादा होंगे। कोलाइड थोड़ी सी लड़ाइयाँ ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह के लोग और दूसरे तरह के लोग जब बराबर हो जाएंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। अभी क्या है कि इंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी उस केस में, ठीक है। जब एक तरह के लोग थोड़े मान लो 70% स्पिन अप है और 30% स्पिन डाउन है, तो क्या है? थोड़ी रैंडमनेस कम है। समझ गए इसके फिजिकल मीनिंग को? यस भैया। ठीक है, तो बिना मैथमेटिक्स किए भी तुम इसका फिजिकल आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरे पे चलें। भैया ये स्पिन पे डिपेंड करेगा, लाइक अगर 3/2 होता तो उस टाइम सेम आंसर आता, एन आता उस टाइम भी। देखो 3/2 होती स्पिन, तो जो तुम्हारा स्पिन है, मान लो जो तुम्हारी मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी डायरेक्शंस ले सकती थी? 3। 4। 3/2 है ना भाई, 3/2 इंटू 2 प्लस 1 4 हो हाँ जाएगा। हाँ भैया, हाँ भैया। 4, तो उस केस में तुम्हें 4 डायरेक्शंस ले सकता था, वो क्वेश्चन एकदम बदल जाता। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला? आधे पार्टिकल्स n प्लस, आधे पार्टिकल्स n माइनस। ठीक है, आधे नहीं, मतलब 2 ही ऑप्शंस थी ना तुम्हारे पास, तो तुम ग्रुपिंग बनाने के लिए तुमने सीधा NC n प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर 3/2 होता तो ऐसे ग्रुपिंग नहीं बन पाती ना। वो समझ 4 गए? टाइप्स के हो जाते हैं। हाँ। हाँ टफ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक। टफ हो जाता। भैया और अगर मिनिमम पूछता तो? एंट्रोपी मिनिमम पूछता तो बताओ कब एंट्रोपी? अगर देश में सारे हिंदू होंगे या सारे जीरो मुस्लिम हो जीरो जाएंगे तो लड़ाई। एंड एन। ठीक है, 100%। भाई सारे एक तरह के लोग हो जाएंगे तो कोई लड़ाई होगी हिंदू मुस्लिम की? नहीं होगी ना। भैया तब तो डेरिवेटिव तब भी तो 0 करेंगे तो मिनिमम ही होना चाहिए। देखो डेरिवेटिव तब, हाँ तो कर देते हैं। अरे देखो यार, तुमने जब डेरिवेटिव को 0 किया तो तुम्हारे पास ये आ गया, ये कंडीशन आई तुम्हारे पास। ठीक है, ये कंडीशन आई तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें अब ये कंडीशन किस किस Yes, सिचुएशन में, ये कंडीशन एक और सिचुएशन में सेटिस्फाई हो सकती है ना। अगर मैं n को 0 कर दूं
तो ये क्या आ जाएगा, ln1 बन जाएगा ये। अरे अगर इसको मैं हटा दूं तो ये ln1 बन गया। या यस भैया। हाँ तो ln1 यस क्या भैया होता है, ln1 क्या होता है? 0। 0। तो उस केस 0 में भी हो गया ना 0 तुम्हारा। तो लेकिन मैं वो वाली सिचुएशन नहीं मान रहा, मैं कौन सी मान रहा हूँ, दूसरी वाली। और वो दूसरी वाली क्या है, ये है। ठीक है जी। ओके भैया। यस। ओके। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा है रैंडम वॉक का। ठीक है, उसके लिए तुम्हें अलग से कंसेप्ट पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, उस कंसेप्ट के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ रैंडम वॉक नहीं, प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत है। इस वजह से इस क्वेश्चन को तुम भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूं। समझ गए बात को? क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर टाइम मिलेगा बाद में तो कर लेंगे। ठीक है। ओके भैया। लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें दे दिया है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, मैंने करवाना नहीं है तो छोड़ देता हूँ। दे दिया है, अगर मन हो तो खुद से कर लेना। लेकिन अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब जिसने पूछा था ना कि अगर स्पिन ओवर होती तो क्या होता, तो अगली उन्होंने दे दिया एक अलग स्पिन। चलो क्वेश्चन रीड करो। कंसीडर अ पार्टिकल विद 3 पॉसिबल स्पिन स्टेट्स, 0 1 0 एंड +-1। 3 पॉसिबल स्पिन स्टेट्स हैं। या तो स्पिन 0 हो सकती है पार्टिकल की, या स्पिन 1 हो सकती है, या स्पिन -1 हो सकती है। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड H प्रेजेंट, H मैग्नेटिक फील्ड है, and the energy of the spin state S is -hs. The system is at temperature T. Which of the following is true about the entropy St? अब बताओ क्या होगा। तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब या तो स्पिन 0 हो सकती है, मींस तुम्हारा पार्टिकल ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, स्पिन ही नहीं है इसकी कोई। या वो स्पिन अप में है, या वो स्पिन डाउन। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। उसने बोला द एनर्जी ऑफ द स्पिन स्टेट एस इच इज -hs। तो जब स्पिन ही 0 होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 0। 0 जब स्पिन 1 है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, -h। जब स्पिन -1 है तो एनर्जी क्या होगी, +h। बात मानते हो, मानते हाँ हो कि भैया। नहीं? हाँ ठीक भैया। है। विच ऑफ द फॉलोइंग Yes, स्टेटमेंट, हाँ अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली ऑप्शन है कि तुम्हारी जो इंट्रोपी है वो ln के मतलब ln3 एट t इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब तुम समझ पा रहे हो ना कि जो 3 होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी, है ना। और मुझे यस बताओ हाँ भैया। इस केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगे, 1 1 ठीक है ना। तो अब तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 3 है कि 1 है। ये आइडेंटिफाई करना है बस, कर सकते हो। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे बताओ T इक्वल्स टू 0 की सबसे बढ़िया बात क्या होती है। T इक्वल्स टू 0 पे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, int हैं? क्या होती ग्राउंड है, स्टेट t ग्राउंड equals to स्टेट 0 नहीं, मिनिमम। एंट्रोपी 0 होती है। इंट्रोपी मिनिमम। इंट्रोपी नहीं पूछ रहा मैं तुम्हें, एनर्जी पूछ रहा हूँ। नहीं, एनर्जी मिनिमम होती है, हाँ हाँ। ग्राउंड स्टेट होती है ना। ग्राउंड स्टेट कब होगी बताओ मुझे, जब एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, तो एनर्जी कब मिनिमम होगी, जब तुम्हारा एक पार्टिकल 0 तो 0 पे रहे, एक स्पिन अप हो जाए, एक स्पिन डाउन हो जाए, तो इन तीनों की एनर्जी प्लस करके 0 आ जाएगी। यस हाँ तो तुम्हारे पास एक ही माइक्रोस्टेट बनती है या ज्यादा हाँ बनती है। ग्राउंड हाँ, स्टेट एक में एक ही होगी, एक ही होगी। डाउन स्टेट में एक ही होगी, तुम पक्का श्योर हो?
यस भैया, भैया यस भैया, यस भैया, भी हो सकती है। एक ही होगा अब एक ही होगी। हाई अब हाई इसे टेम्परेचर रीअरेंज करने पर आ रहा हूँ मैं, रुको इनके पास आ रहा हूँ। बताओ, अब मुझे बताओ टेम्परेचर हाई करने पे क्या होगा? कंप्लीट वो रैंडमाइजेशन आ जाएगी। अलग अलग स्टेट्स होगी, हर एक अलग अलग स्पिन की। ठीक है, टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी उसको, तो फिर वो शिफ्ट होंगे अलग अलग में, फिर ऐसे। तो कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे फिर? 3। 3 पॉसिबिलिटी होगी। 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन सी बताओ? एक तो भैया अलग अलग स्टेट्स में पार्टिकल एक है ना, वहां पे पार्टिकल तो एक ही है ना, या तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। 3 स्टेट्स मैं पॉसिबल है ना। अब तुम आ गए बात, हो क्या बात है, आके तुमने बढ़िया आंसर दे दिया। ठीक है, तो 3 एनर्जीज पॉसिबल है। एक है 0, एक है -2, एक है +2। जब दोनों स्पिन स्टेट्स ऊपर हो जाएंगी तब क्या होगा? तब क्या होगा बताओ? तब एनर्जी हो जाएगी -2। जब -2। दोनों जब नीचे हो जाएंगी तब हो जाएगी +2। ठीक है, थर्ड को तो मान के ही नहीं चल रहे, थर्ड की तो 0 है, उसकी एनर्जी वैसे ही 0 है। तो जब एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा तो एनर्जी आ जाएगी 0। ऐसी सब सिचुएशंस कब आएंगी? जब टेम्परेचर हाई होगा, हाई। तो आंसर क्या है? इट इज Ln3 एट हाई टेम्परेचर एंड 0 एट लो टेम्परेचर। समझ गए आंसर बात को? हाँ भैया। सब ठीक समझ है गए इस भैया। क्वेश्चन को? अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये ना माइक्रो कैनोनिकल असेंबल में फिजिकली बहुत सोचना पड़ता है। मान रहे हो बात को? हाँ भैया। हाँ जी यार भैया। फिजिकली बड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा है। तो क्या है, अगर कोई बंदा जिसको मैथमेटिक्स पसंद है तो क्या करेंगे, इस सेम प्रॉब्लम को मैं कैनोनिकल असेंबल से सॉल्व करूंगा। उसमें तुम्हें 0 दिमाग चलाना है, लेकिन मैथमेटिक्स ज्यादा करेंगे, आंसर सेम निकालेंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन रीड करो। कंसीडर अ सिस्टम मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर T and there are 2 available energy states, E1 and D2, with the degeneracy of G1 and G2. If P1 and P2 are the probability of occupation of the 2 energy states, then what is the energy of the system? अरे यार ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, समझ रहे हो क्वेश्चन को? चलो क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। There are 2 energy states, okay? Their degeneracy is G1 and G2. तो एक्चुअल में कितने लेवल्स हैं? G1 + G2। और ऐसा करते हैं, ये ऐसा होता है ना, ठीक है? तो E1 एंड D2 एनर्जी है। अब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है P1, इस एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी है P1 और इसको ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी है P2। व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम? सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, ये पूछा गया है आपसे। तो तुम्हें एक्चुअल में क्या निकालना है कि सिस्टम के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगे। कितने पार्टिकल हैं? सिस्टम इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर T and the 2 available energy states। तो मुझे बताओ P1 क्या होगा? probability of occupying this level is what? ये क्वेश्चन तुम्हारा ना माइक्रो का है ही, रहने दो, ये माइक्रो का क्वेश्चन G1 + G2 से GM। नहीं रहने दो, ये क्वेश्चन तुम्हारा कैनोनिकल का है।
ये क्वेश्चन तुम्हारा माइक्रो का नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। करवाऊंगा कैनोनिकल में, करवाऊंगा ये कल करेंगे कैनोनिकल में, क्योंकि इसमें ना वो फॉर्मूला लगना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इंट्रॉपी देख के ना मैंने इसको माइक्रो में डाल दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैनोनिकल का है, ठीक है। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर